Exam dost, success ka host. Sainik na vodaya mein topmost. Hello and welcome everybody to the session on health, the ultimate treasure, chapter 3 है. Let us start. How does your body respond to an infection such as common cold? We rarely see cases of smallpox or polio these days, but diseases like diabetes and heart problems are more common. Why? Could climate change lead to new type of diseases? How do emotions like stress or worry affect us or make us sick? Why do some group of people get affected more than others during disease outbreaks? So, couple of questions they are starting with. Let us start the discussion on this. Health is health. Is it more than not falling sick? तो basically health को define किया है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है. It's not that you don't have a fever and you don't have common cold. That is a state of health. It should be mental, social, in all aspects also. उसी के बारे में बात करेंगे. How do the news clippings on the notice board tell you about people's health in our country? Is being healthy just about not having diseases? Health also includes feeling good physically, staying positive, and having strong relationships. A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life. तो कह रहे हैं कि healthy का मतलब सिर्फ body में disease ना होना नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप होनी चाहिए. तो मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग सभी और सोशल वेलबींग भी है. व्हाट इज द ट्रू मीन ऑफ बीइंग हेल्दी? लेट अस स्टार्ट. लेट अस रीड अ ग्रेट टू अ स्कूल लाइक एक्सपेरिमेंट. Moved to a new school in another city with no friends in his new environment and busy parents. He felt lonely. To cope, he spent more time on his phone and social media. But this made him feel worse. He stopped trying to make friends, had headaches, lost weight, and could not sleep well. A doctor advised less screen time and meeting a counselor. The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. तो ये बता रहा है कि नए स्कूल में जाने से स्टूडेंट के नए फ्रेंड्स नहीं होने से वो मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने लगा, जिससे उसे और सिचुएशन ख़राब हो गई. हेडेक होने लगा, वेट कम होने लगा, नींद नहीं आ रही है. तो एक काउंसलर के साथ उसकी मीटिंग हुई. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम? हाउ डिड द हैबिट्स एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेल बीइंग? As per the World Health Organization, यहाँ से क्वेश्चन के पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं. As per WHO, health is defined state of complex physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. तो बन सकता है what is the health, उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल एस्पेक्ट्स भी आते हैं. यहाँ पर देखो डायग्राम में इन्होंने तीनों को क्लब किया है, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल. सिर्फ बीमारी नहीं है तो हेल्दी नहीं है. दैट्स नॉट द डेफिनेशन. द हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली एंड कोप वेल इन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन. Now that we have seen that all communicable diseases are caused by pathogens. These pathogens can enter our body through the air we breathe or by consuming contaminated food or water and more. But how do these pathogens spread from one person to another? One common way through air when the infected person coughs or sneezes, or through direct contact like shaking hands, or indirectly by sharing पर्सनल आइटम्स ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन. पर्सनल आइटम्स मतलब उनके हैंकरचिफ वगैरह आपने अगर यूज़ किए तो उससे भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकते हैं. सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड. सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाई. दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स. क्वेश्चन बन सकता है कि वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर बेसिकली द कैरियर एजेंट्स होते हैं जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, पैथोजेंस को कैरी करते हैं. दे आर कॉल्ड द वेक्टर्स. बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर्स. लेट अस फाइंड आउट हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम. लिस्टेड आर सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस ड्यूरिंग अ कम्युनिटी कैंपेन एंड अ लाइब्रेरी सर्वे. Check the information listed below, study the table and think about simple steps to prevent them. टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है. डिजीज़ पहला दिया है डिजीज़, बाद में दिया है कॉजल एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स. एनसीईआरटी में भी इस तरह का टेबल था, पर इस बार थोड़ा और बेटर उन्होंने टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है. इस टेबल से क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा. कॉमन है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन
हाई चांसेस हैं कि इस टेबल से आपको एक क्वेश्चन आ जाए। पहला उन्होंने दिया डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर। फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। किससे होता है? वायरस से होता है। कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा जो अफेक्ट होता है। सिम्टम्स क्या है? नेजल कंजेशन है, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट है, फीवर है, कफ है, बॉडी एक है। इसके लिए क्या करना है? वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, कवरिंग द माउथ एंड नोज। इसके ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। दूसरा चिकन पॉक्स दिया है, एयर से भी है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? वायरस से होता है। कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, स्किन में होता है। सिम्टम्स हो जाएंगे माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैशेस, ब्लिस्टर। सिम्टम्स पे क्वेश्चन के चांसेस कम है। एक कॉमन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिजीज कौन से किससे हो रहा है, जैसे चिकन पॉक्स किससे हो रहा है, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। सिम्टम्स देकर क्वेश्चन पूछना अभी तक इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम ये है सिम्टम्स देने में, क्योंकि कई सारे के सिम्टम्स सेम होते हैं। जैसे सभी में देखो फीवर और फीवर सभी में है, तो तीनों में है। कॉमन कोल्ड में भी फीवर है, चिकन पॉक्स में भी, मीजल्स में भी। तो जनरली सिम्टम्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम रहेंगे। कॉजेटिव एजेंट्स आपको जरूर पूछ सकते हैं, या फिर एरिया कि कहाँ पर आपका इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी कॉमन रहेगा। मीजल्स वायरस से होता है, स्किन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अफेक्ट होता है। इसमें भी फीवर है, सोर थ्रोट है, रेडिश रैशेज ऑन द नेक है, ईयर्स है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन। प्रिवेंटिव मेजर वही है, हाइजीन मेंटेन करना है। वायरस के केस में, चिकन पॉक्स के केस में कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड नोज। मीजल्स आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, वैक्सीनेशन, ये सारा हमें ध्यान में रखना है। तो ये टेबल है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे और भी इन्होंने दिए हुए हैं टेबल। तो ये जितने भी टेबल इस बारे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से डेफिनेटली ये एक एरिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। टीबी का बताया हुआ, टीबी का एरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। कफ है, फीवर है, फटीग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नाइट स्वेट्स है। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, गेटिंग वैक्सीनेटेड। डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। तो पहला हेपेटाइटिस ए है, वायरस से होता है, लीवर को अफेक्ट करता है। फटीग मतलब लेजीनेस फील होगी, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस होगा, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन होगा। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन। कॉलरा किससे है? बैक्टीरिया से है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन अगेन। नेक्स्ट इज टाइफॉइड भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? इंटेस्टाइन होता है। हेडेक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, फीवर है, डायरिया है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट एस्कैरियासिस, ये पहले नहीं था, इस बार आया है। वॉर्म से होगा, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। वॉर्म्स इन स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, ये सारी इसमें आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज एस्कैरियासिस। राउंड वॉर्म से होता है, क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार आया, पहले नहीं था। अगला मलेरिया दिया है, मलेरिया काफ़ी बार पूछो गया, प्रोटोजोआ से होता है, स्किन और ब्लड को इम्पैक्ट करता है। हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्पीटिंग, पसीना आता है, पीरियोडिक चिल्स, यूज ऑफ मस्कीटो नेट एंड रेपलेंट्स, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, कंट्रोल ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर। तो मच्छर से फैल रहा है तो बचना है उससे। नेक्स्ट इज डेंगू फीवर, इसी को ब्रेक बोन फीवर क्वेश्चन बन सकता है। ब्रेक बोन फीवर कौन सा है? तो डेंगू फीवर। वायरस से होगा, स्किन और ब्लड को इम्पैक्ट करेगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल जॉइंट पेन होगा, नोजिया होगा। मस्कीटो एंड नेट रेपलेंट्स यूज़ करने, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स, कंट्रोल द मस्कीटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, अवॉइडिंग एरियाज विथ स्टिल वाटर। तो जमा हुआ पानी कहीं नहीं होना चाहिए। बाय स्टडिंग द टेबल वी कैन अंडरस्टैंड हाउ infectious disease spread and how to prevent them. Here are some simple but important steps. Keeping ourselves and our surroundings clean, practicing basic hygiene, washing hands with soap and water to remove pathogens, covering our mouth and nose while coughing and sneezing, wearing a mask in crowded places provide protection, avoid sharing of personal items like towels and handkerchiefs, keeping our home, food and water clean, staying at home and resting when we are unwell helps the body recover and minimizes spreading of disease to others. Some infectious disease are caused by worms that live inside our bodies, especially in the digestive system. They feed on nutrients and live as parasites. Organisms that live in on another living being, ये parasites को define किया यहाँ पे. These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animal. वो अभी तक ये पार्ट इंक्लूड नहीं था कि वॉर्म से भी हमें बीमारियां होती हैं, अब डाला है।
मूविंग फर्दर फ्रॉम दैट, द नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल्स. तो हमने 3 स्केल देखे, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्केल कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, यस. फॉर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द वर्ड डिग्री, सॉरी यहाँ पर जो वर्ड डिग्री है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस डी स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी डी स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है. तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. वाइल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. तो डिग्री सेल्सियस में डिग्री डी स्मॉल लेटर है, सी कैपिटल है. डिग्री फ़ारेनहाइट में डी स्मॉल है, फ़ारेनहाइट का एफ कैपिटल है. द यूनिट केल्विन स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर. केल्विन देखो ये स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, ये कैपिटल से शुरू नहीं हो रहा. द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड के आर कैपिटल लेटर. तो सिंबल तीनों के कैपिटल हैं. नोट दैट डिग्री साइन, ये है डिग्री का साइन है, इज नॉट रिटन विथ के के साथ हम डिग्री का साइन नहीं लगाते हैं. अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस. वाइल राइटिंग द टेम्परेचर अ स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट. तो जब हम टेम्परेचर लिखते हैं तो नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस छोड़ते हैं. फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री, दैट इज डिग्रीज. तो डिग्री का प्लूरल भी बता दिया क्या होता है, डिग्रीज होता है अगर मोर देन 1 डिग्री है तो. वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट. नेक्स्ट, हाउ वाज द फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर वर डेवलप. तो ये बता रहे हैं कि थर्मोमीटर जब नहीं था तो उसके पहले फीवर को कैसे डिटेक्ट किया जाता था, कैसे पता किया जाता था कि फीवर है. फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ द पर्सन. तो जब थर्मोमीटर नहीं था तो पल्स रेट से पता किया जाता था, क्योंकि अगर किसी को फीवर होगी तो उसका पल्स रेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा. दिस वॉज नोन इवन इन ओल्डन डेज, ओल्डर होना चाहिए एक्चुअली, इन इंडिया. तो बताते हैं कि इंडिया में लोग थर्मोमीटर आया उससे पहले कैसे पता करते थे फीवर है, पल्स रेट से पता करते थे. पल्स रेट मतलब जो हमारी जो नाड़ी होती है, रिस्ट होती है, वहाँ पर हमारी पल्स रेट होती है. तो वहाँ से हम पता कर लेते थे कि फीवर है नहीं. हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशंस ऑल्सो अफेक्ट द पल्स रेट. हैंस पल्स रेट अलोन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर. तो पल्स रेट और भी कुछ चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है बुखार के अलावा, तो हम सिर्फ पल्स रेट पर रिलाई नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मोमीटर के पहले इंडिया में क्या यूज़ करते थे, पल्स रेट यूज़ करते थे. आगे यहाँ पर साइड में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. कि क्या हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो घर पे हमारा फीवर वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या उससे हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं? क्या आइस का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल. सो दिस वॉज द एयर टेम्परेचर वॉज अ इंडिकेटर ऑफ वेदर. तो इसको हम वेदर के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे. न्यू साइंटिस्ट, अभी इस बार जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत साइंटिस्ट के नाम ऐड किए, इंडियन साइंटिस्ट के. डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है. यहाँ इन्होंने बताया अन्ना मनी, जो हमने बिगनिंग में बात की थी, 1918 to 2000 वॉज ए इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो नोन एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, हु इज नोन एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया. तो अन्ना मनी इस नाम है साइंटिस्ट ने. क्या इन्होंने, शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. वेदर को मेजर करने के बहुत से इंस्ट्रूमेंट इन्होंने. ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनाया इन्होंने? इन्होंने वेदर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट बनाए. दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट. अब भाई इसके पहले अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, उनके बनाए हुए डिवाइसेस पर, उनके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंडेंट थे, जिससे हम वेदर या टेम्परेचर को पता करते थे. लेकिन अब हमने खुद बनाया और अन्ना मनी ने बनाया. आप फोटो देख सकते हैं, अन्ना मनी ने इस तरह के बहुत इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे वेदर को हम मेजर करेंगे, नापेंगे. शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया. और अभी आपको पता है आजकल तो क्लीन एनर्जी की
चल रहा है, हर जगह आप सोलर पैनल, सोलर एनर्जी देख रहे हैं। तो इन्होंने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज़ करने के भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। और उन्होंने हमारे देश को लीडर बनाया किस चीज़ में? रिन्यूएबल एनर्जी में। उन्होंने हमारे देश को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पर समरी आ गई। ये सारे कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक में। एयर टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन, केल्विन स्केल, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, इन सभी को हमने डिस्कस किया। अब ये जो लास्ट के पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन पिकअप किए जा सकते हैं यहाँ से, तो ये हमें एक हिंट मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एट दी एंड एज अ समरी, समरी में क्या बता रहे हैं? द टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर से पता चलेगा वो कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। द 3 मोस्ट यूज्ड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, वी हैव डिस्कस्ड। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन दीज स्केल्स आर डिग्री सेल्सियस डिनोटेड बाय .C, डिग्री फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाय .F, एंड केल्विन सेल्सियस दिस इज डिनोटेड बाय K. SI unit of temperature is Kelvin. SI मतलब international standard. A clinical thermometer is used for measuring body temperature. Normal temperature of healthy human is 37.0 degree Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. Laboratory thermometer typically have a temperature range of -10 to 110. क्वेश्चन बन सकता है कि laboratory thermometer में टेम्परेचर का जो रेंज है वो क्या होता है, क्वेश्चन बन सकता है। दैट विल बी एंड ऑफ दिस टॉपिक। और इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा ज़रूर जा सकता है। प्लीज़ रिवाइज, गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट 3, 4, 5 टाइम्स।